years old Kashmir Shaivism war. It is, though I belong to Jammu and Kashmir, it is 1100 years old Kashmir Shaivism Sanskrit word, Supanda. Supanda means vibrating energy. After 1100 years, now the scientists of the world, they have come to understand that everything in this world is vibrating energy. Earlier, during wars or Darwin's type periods or other physicists who were working on this, everyone was telling that everything is a particle. Everything is a particle and an energy. Now the scientists are saying that everything is vibrating energy. I am talking to you, it is coming from my mouth up to your ears through vibrating energy. So everything in this world is vibrating energy. If you are meditating, so that is also vibrating energy. Consciousness is also meditating energy. So everything, whatever you see with your eyes in this world, that is vibrating energy. So this word was devised by Abhinav Gupta 1100 years back. After Abhinav Gupta, the work, the contributions were from Vasu Gupta, then Utpal Dev, Hevraj, and lastly Swami Lakshman Ju. So they have contributed towards the science of Supanda, vibrating energy. You will be surprised to know that maximum universities of the world are doing research on this word Supanda. May it be Jawaharlal Nehru University. They have a separate research department for Supanda. Banaras University, Harvard, Oxford, MIT, all leading universities of the world are doing research on Supanda. And Mark Dubowitz is a scientist. He has written a book, Doctrine of Vibration, that is based on Supanda. Then Dr. Hughes, John Hughes, is writing Swami Lakshman Ju Institute in New York. He has also written book on Supanda. Swami Lakshman Ju has written book on vibration plus vibration. So this is very beautiful science, practical and beautiful science, which will open new vistas, which will open new arena to the personal and transformation sciences of the world. So, not taking so much of your time, let me start with this. First of all, you tell me, how are you today? You are good? Yes. So, how can you define your whether you are good or bad in bad mood today? What are the parameters? Who can tell? Can you raise your hands, please? Who will tell me how you will decide whether you are in good mood or in bad mood today? How you recognize that? How you identify that? What are the parameters for that? Yes, please. So myself Tanvir Kaur, I am in BA third semester. So through facial expressions, I can express myself I am in a bad mood or in a good mood. So facial expressions, you take help of a mirror or the friends. Because you cannot see your face. So how you understand that? So through friends. Friends. Okay. So your the parameter is that your friends, when they say you are in good mood, you also think like that I am in good mood. Anyone else? Yeah, please. Introduce yourself. So my name is Manisha Devi and I am first semester student. फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट सर आई थिंक सर मैं ऐसे बता सकती हूँ कि मेरी एनर्जी के थ्रू बता सकती हूँ लाइक जैसे कि आई कैन फील कॉन्फिडेंट इफ आई एम फील कॉन्फिडेंट इट मीन्स इन माई टुडे आई एम गुड एंड ऑल्सो इफ आई एम हैप्पी इंटरनली सो आई कैन से दैट आई एम फीलिंग गुड दैट्स व्हाई That is great. Yes, That is great. You are very nearer to the topic. yes. That you recognize your energies. Energetic. If I am energetic and also if I am happy and confident, it means that today my day is very good. Now the energy you can recognize on two levels. One is your physical energy, one is your mental energy.
So how, on which level you give emphasis or you recognize that? So I give more emphasis on the mental energy Mental because energy. physically I know I am fit and fine, so I will emphasize more on the mental energy. So, very good, great. Please sit down. Yes. Sir, myself Meenakshi Devi. Sir, I am third semester student. So you are both ladies and Sir, sitting please, together. please. Twins, we both are twins. Oh, great. That's Sir, great. I am feeling positive energy in myself today because most of the time when I go to the situations, the circumstances, I feel negative energy. But now by meeting you, now I'm feeling positive. Now positivity grows. I can feel. So my question was how you identify that whether you are in a good positive mood or in negative mood. Sir, positive. What are the parameters for? You might have set some parameters for that. Sir, I am positive today because most of the time I was negative. I do not have much bad circumstances that make me happy and that make me smile. But now after meeting So you, two parameters are there. after- Smile and happiness is Yes. your two parameters. yes, sir. If you feel happy, you say that you are in a good mood, right? If you if there is a big smile, lovely smile on your face, you start perceiving that you are. Sir, the reason of that smile is you by meeting you. I'm just here. I have only 2 minutes, 3 minutes. Sir, the impression that you leave is very. Thank you very much. God bless you. Thank you. Anyone else? Good morning, sir. So my Very name good is morning. Aman It is Kanatia. afternoon. My name is Aman Kanatia. I am the student of first semester. Sorry, sir, good afternoon. Sir, I compare my good mood. I think it depends upon the stress on my mind because mostly in the 24 hours, except sleeping, I think I have a stress in my mind regarding small things, bigger things, family problems, study issues, and all those things. But sometimes, some minutes, or you can say some hours we have in a day when we do not have any kind of stress. We just think about our life because I felt sometimes those moments. So I think the time when we do not have stress on our mind, that's a time or that's a moment in which I have So good mood. stress is your parameter, right? Yes, sir. Yes, sir. On the basis of stress, Yes, sir. levels of stress, varying levels of stress, you recognize whether you are in good mood or in bad mood. Definitely, sir. Because I think that if a person have a small amount or bigger amount of stress in his or her mind, so he will not be able to stay in a good mood. Please sit down. Thank you. Thank you very much. आप अपने आप को कैसे पहचानते हैं कि आप खुश हैं, क्या आप उदास है, आप स्ट्रेस में हैं, क्या आप अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम करते हैं, कैसे क्या पैरामीटर्स हैं आपके? कुछ लोगों ने कहा हैप्पीनेस, कुछ लोगों ने कहा स्माइल, कुछ लोगों ने कहा स्ट्रेस। अच्छा, आज आप इस हॉल में जितने भी हम लोग प्रेजेंट हैं, आप में से कितने लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं? जो लेवल आपकी है उस लेवल से आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, क्या आपको ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है? क्यों? कौन बताएगा? आप बताओ। myself Rohan and I'm the student of third semester. Sir, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस करें, बट एक स्पिरिचुअल वे से कि जो एक इंसान है उसको मॉरल वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी है लोग वो सक्सेस तो है अपनी लाइफ में बट वो मॉरल वैल्यूज को भूल गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी पर्सन है वो सक्सेस भी हो अपनी लाइफ में और उसको मॉरल वैल्यूज भी पता हो। और कोई? सर मैं सर इसलिए ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ क्योंकि सर इट विल ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर मी इफ आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड ऑल्सो आई कैन इम्प्रूव एंड ऑल्सो आई कैन वर्क ऑन मी ऑल्सो बिकॉज आई डोंट नो माई पोटेंशियल अनलेस और until I will grow in that environment where I can come to know about my potential. That's why sir I want to go in the yes sir transform. फैकल्टी में से कोई? आप अपने आप को क्यों ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? बताइए, फैकल्टी में से कोई आप? लाइक डेवलपमेंट इज एंडिंग प्रोसेस है कि हम अपने आप को हर कोई चेंज चाहता है जी। कि हमेशा नया चैप्टर लाइफ का कुछ ना कुछ, और वैसे भी डेली हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं, तो हर कोई चाहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्रूवमेंट हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, हम और बेटर इंसान बने।
Greatest life. चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ आप बताइए। Sir, change in the law of nature to be inevitable है और with ever changing time it's very necessary कि हम खुद को up to date रखें और ताकि हम अपना एक best possible version बनते रहें as per changing times. थैंक यू वेरी मच। बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर साइंसेस है ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारी विडंबना है, हमारी विडंबना है, इस देश की विडंबना है, इस वर्ल्ड की विडंबना है कि हर व्यक्ति को ये सिखाया गया है कि आप अपने अपने को छोड़ के दूसरों के चारों साइड में घूमते रहो। वो रिलीजन हो, आपको नकेल डाल दी गई है, रिलीजन की सब आपको बांधा गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इसके साथ बांधा गया है। आपको ऐसी चीजों के साथ बांधा गया है जो आपकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। कंट्रीब्यूशन सिर्फ तब हो सकता है जब आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। किसी ने आज तक इतने लाखों करोड़ों सालों में ये नहीं कहा है कि भाई आप खुद को पहचानो, आप क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपकी कॉम्पिटेंस क्या है, आपके अंदर में पॉजिटिव क्या है, आपके अंदर में नेगेटिव क्या है। आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया कि आप अपने बारे में सोचो। आपको हर बार ये कहा गया है कि आपको दूसरे के बारे में सोचना है, और ये गलत तरीका है। यही वजह है कि आज हम लाखों सालों के बाद भी परेशान हैं। यही वजह है कि ये इस संसार में मिजरीज है, इग्नोरेंस है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर वार करके हजारों लोगों को मार रहा है। हम सोच भी नहीं रहे कि एक आदमी गन उठा के दूसरे को मार रहा है। तो अगर ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस, ये रास्ता सही होता तो आज हम परेशान क्यों होते, आज हम स्ट्रेसफुल क्यों होते, हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, हमारे फेलियर्स क्यों होते, हम एक्सीलेंस को क्यों अचीव नहीं करते लाइफ में। अगर ये सारी चीजें आज तक जैसे चल रही थी वो सही हो, तो मेरा ये कहना है कि आज के बाद आपकी एक नई लाइफ शुरू हो रही है। अगर आप इस साइंस को समझेंगे तो आपका जो डायमेंशन है सोचने का वो चेंज होगा, आपका एक नया जीवन शुरू होगा, और मैं गारंटी दूंगा आपको आप सक्सेसफुल होंगे। आप जो करेंगे आप उसमें एक्सीलेंस अचीव करेंगे, आप जो करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। आपको ये साइंस को समझना है, और बहुत सिंपल साइंस है। न मैं कोई गुरु हूँ, न मैं कोई स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने अपने आप को, मैं सेमी डेविल था, मैं एक राक्षस था। मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते करते इस स्टेज पे लेके आया। जो लोग इस वक्त बुरे कर्म करते हैं, मैंने ये सब किए हैं, और खुद को ट्रांसफॉर्म करते गया और इस स्टेज पे आया। एक समय आया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, और मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और प्रोफेशनल की जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। जिस प्रोसेस से मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मैं आप वही प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, जो साइंटिफिक है, जो सही है, और जो हर स्क्रिप्चर में लिखा गया है। हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत विश्व गुरु रहा है। आध्यात्मिकता के आधार पे भारत विश्व गुरु नहीं रहा है, भौतिकवाद के आधार पे भारत विश्व गुरु नहीं रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन साइंसेस के आधार पे भारत विश्व गुरु रहा है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन साइंसेस, हमारे जितने भी महान गुरु पैदा हुए भारत की इस धरती पे, सबने यही कहा कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप के नजदीक आप रहो, और अपने आप को पहचानो, रियलाइज कर दो, और यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ये सभी का है। उन्होंने ट्रस्ट दिया है बॉडी, माइंड और सोल पर। इंडिया के जितने भी आचार्य, जितने भी बहुत बड़े संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने बॉडी, माइंड और सोल पे ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रेस दिया है कि आप इन लेवल्स पर आपको ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि वो हॉलिस्टिक है, वो इंक्लूसिव है। आप अगर सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग बना देंगे, आपका माइंड वीक होगा। आप माइंड को स्ट्रांग बना देंगे, बॉडी वीक हो जाएगी। आप दोनों को स्ट्रांग बनाओगे तो आपकी जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है,
जो कॉन्शियसनेस मुझे इस वक्त लेक्चर दिलवा रही है, आपको आप बैठ के सुन रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस आपकी वीक होगी। तो तीनों का जुडिशियस बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तीनों साथ साथ में चलने चाहिए, तभी आप में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट इंक्लूसिव पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। 2500 साल पहले, 2500 साल पहले जब वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, महर्षि पतंजलि ने योगा को इंडिया में डिस्कवर कर दिया। तो योगा क्या है? वो किसी धर्म का नहीं है, वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं है। योगा वो वेलनेस साइंसेस है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसका किसी का ठप्पा नहीं है। महर्षि पतंजलि ने ऐसे योगासन दिए जिनसे आज बीमारियां ठीक हो रही है। 21 जून हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 188 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया कि योगा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज वेलनेस साइंसेस, और इसको हमें अपनाना चाहिए और वो करते हैं। नेक्स्ट, मैंने कुछ चीज का यहाँ पर मेंशन किया है कि हमारे जो महापुरुषों में महर्षि पतंजलि, वेदव्यास, गौतम बुद्ध, स्वामी योगानंद जी, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी, जगद्गुरु शंकराचार्य, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, आपके जैन महावीर, और भी इसमें बहुत सारे हैं। इसमें गुरु नानक देव जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में, और बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनियों ने इस पे काम किया है। विश्व की सबसे पहली सर्जरी कहाँ हुई है? किसने की थी? सुश्रुत ने विश्व की सबसे पहली सर्जरी 600 BC में। सुश्रुत धन्वंतरी के अंडर में उन्होंने विश्व की पहली सर्जरी। मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता ने 650 AD में पहली बार जीरो को इन्वेंट किया इंडिया में। ये भी यहीं से हुआ है, इंडिया से जीरो डिस्कवर इंडिया में हुआ। मैथमेटिशियन एस्ट्रोलॉजर आर्यभट्ट ने ल्यूनर और सोलर इक्लिप्स डिस्कवर की, और डॉक्टर सीवी रमन ने लाइट स्कैटरिंग का प्रिंसिपल बताया कि लाइट स्कैटर होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये सीवी रमन ने इस चीज को डिस्कवर किया। आचार्य जेसी बोस ने पहली बार कहा, जगदीश चंद्र बोस जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में लाइफ होती है वैसे प्लांट्स में भी लाइफ होती है। ये विश्व के किसी व्यक्ति को नहीं मालूम था। उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया और ये पाया कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है। जब हम जो मेजर डिस्कवरीज हुई है, डेंटिस्ट्री जो हुई सबसे पहले शुरू हुई है वर्ल्ड में, इंडिया में डेंटिस्ट्री 7000 BC में शुरू हुई। आयुर्वेदा 5000 साल 5000 BC में। एंसेंट जो टॉयलेट फ्लश सिस्टम है ये इंडिया में डिस्कवर किया गया। रूलर जैसे किंग रूल करते थे, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में शुरू किया गया, यहाँ डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट, वेइंग स्केल, पाइथागोरियन थ्योरम, कैटरैक्ट सर्जरी, अर्थ ऑर्बिट, प्लास्टिक सर्जरी और स्पिनिंग व्हील, ये सब इंडिया में डिस्कवर हुआ। इंडिया से ही इन चीजों को किया। तो इंडिया इसीलिए विश्व गुरु का कहना होता है, क्योंकि हर रिसर्च जो मेजर रिसर्च हुए हैं वर्ल्ड में वो इंडिया से शुरू हुए। विश्व का सबसे बड़ा वार कहाँ लड़ा गया है आपको मालूम है? कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा वार। वो कितने लोग मरे थे उसमें? 45 लाख। कितने मिनट में भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी? 18 अध्याय 772 श्लोकास कितने मिनट में सुनाई थी? 45 मिनट। विश्व का सबसे युद्ध हमने लड़ा है, भारत ने लड़ा है। और हमारे उस वक्त सिस्टम था कि वार कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे एंड होगा, इथिक्स क्या रहेगी, किस तरीके से वार लड़ना चाहिए। और फिर हमने वर्ल्ड को भी वो साइंस सिखा दिया। जो महाभारत पूरा ग्रंथ है वो वार पर ही सारा है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम कॉन्शियस डिजिटल कोचेस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं
जो लोगों को हेल्प करे कॉन्शियस बनने में और लोगों को ट्रांसफॉर्म करे, वो अच्छे डिसीजन मेकिंग ले सके और लाइफ में वो सक्सेसफुल बने और एक्सीलेंस को अचीव करे। नेक्स्ट, I am on a mission to create 2 lakh digital conscious digital coaches. हमें इस स्कूल में स्पंदशाला में 2 लाख कोचेस चाहिए होंगे जो विश्व के एक 10% पॉपुलेशन को पहले फेज में ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। बेस्ड ऑन इंडियन वैदिक साइंसेस, जो इंडियन एंशिएंट साइंसेस है उस पे बेस करके हमें ट्रांसफॉर्मेशन साइंसेस के कोर्सेज बनाने हैं। We have to design those courses and teach online to various people who are desire to undergo those courses through online mode. हमारा जो विजन है वो ये है कि हर घर में खुशहाली हो, लोग खुश रहे, हैप्पीनेस हो, पीस हो और बहुत ही सुंदर यहाँ पर संसार बने। हमारा अप्रोच क्या है जो मैं आपको कह रहा था वो ये है, अब आप लोगों ने तो बहुत आसानी से कहा कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है, आपने ये भी कहा कि मेरे ये पैरामीटर्स हैं, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और समझता हूँ कि मैं आज खुश हूँ कि उदास हूँ। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। 24 घंटे में हाउ मेनी थॉट्स कम अक्रॉस योर माइंड इन 24 आवर्स? कैन यू टेल मी? रेज योर हैंड्स। 24 घंटे में आप कितनी बार सोचते हैं, मतलब हाउ मेनी थॉट्स कम अक्रॉस योर माइंड? काउंट तो होगा कितना? आप कितनी बार इनहेल और एक्सहेल करते हैं 24 आवर्स में? बहुत सिंपल है, ये तो पर्सनल हमारे से जुड़ा हुआ है। बॉडी मेरी, बॉडी हमारी, हमें अपनी इस बॉडी के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है कि हमें अमिताभ बच्चन के बारे में जानना जरूरी है। किसके बारे में जानना? हमें अपने आप के बारे में ज्यादा जरूरी जानना है कि दूसरे के बारे में? 75,000 थॉट्स आते हैं 24 घंटे में। कितने? 75,000 थॉट्स, और आप इनहेल एक्सहेल करते हैं 2500 टाइम्स। ये बहुत एक महासागर है। आप इस महासागर में से क्या पहचानेंगे कि आपके 75,000 थॉट्स में अच्छे कौन से और बुरे कौन से हैं? मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। यहां पर यहीं पर हमारी गलती हुई है। आपको ये नहीं बताया गया बचपन से कि आप अपने थॉट्स को पहचानो। आपको ये बताया गया है कि आप दूसरे के थॉट्स को पहचानो, दूसरे को देखो, इस संसार को देखो, ईश्वर को ढूंढो, उस ईश्वर को जो इनविजिबल है और आज तक किसी को मिला ही नहीं। मैंने 200 प्रोमिनेंट सेंट्स के साथ इंटरव्यू किया है, किसी को भी ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। जैसे वो परसीव करते हैं कि हाथ में त्रिशूल होगा, फिर ऐसा होगा, वैसा किसी को नहीं मिला। तो एक ऐसी चीज के पीछे आपको लगाया गया है, इस संसार को लगाया गया है कि जो आपको कभी मिलेगी नहीं। आप 100 साल और जियो, मैं गारंटी देता हूँ 500 साल जियो और मुझे आप गॉड के दर्शन कराओ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आपको नकेल डाल के उसमें फंसाया गया और वो खुद दुकानें चला के एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई है, आपके सामने में केसेस आए हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो गई। दूसरी गलती ये हुई है कि आपको ये कहा गया है कि अपने को भूल जाओ, आप सैक्रिफाइस दो, आपके अंदर में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, आप दूसरों के लिए करो, अपने लिए नहीं करना। ये दूसरी गलती होगी इस संसार में। इसको आपको बदलना है। आप यंग है, आप कर सकते हैं। हमारी एज निकल चुकी है बहुत सारी, हम बहुत कम कर सकते हैं। यू आर वेरी यंग, आपकी एवरेज एज 25 होगी, तो 25 साल में आपके सामने में और 40, 50 साल, 60 साल जीवन है। आप कर सकते हैं। आप लोगों को आगे अवेयरनेस फैला सकते हैं कि भाई यार ये सब छोड़ दो, तुम अपने आप को पहले, अपने थॉट्स को पहचानो। तो हमारा जो डायग्राम है जिसको फनल बोलते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन फनल क्या है? हमारा ये मानना है कि कॉन्शियस माइंड से परफेक्ट डिसीजन मेकिंग हो सकती है। जो व्यक्ति कॉन्शियस होगा
जिसमें अवेयरनेस होगी, अपने बारे में सोचता होगा, वो डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया ले सकता है। जो अच्छा डिसीजन मेकिंग लेगा वो इंक्लूसिव सक्सेस प्राप्त करता है। वो सक्सेस नहीं प्राप्त करता है, इंक्लूसिव मतलब सबके लिए। जब वो अपनी इंडस्ट्री चलाएगा वो 10 बार सोचेगा कि मेरी इस इंडस्ट्री से पोल्यूशन तो नहीं होता है, मैं ये काम कर रहा हूं तो जानवर तो नहीं मर रहे हैं, या किसी और व्यक्ति को तकलीफ तो नहीं हो रही है। इंक्लूसिव सक्सेस मतलब सबके लिए। और जो इंक्लूसिव सक्सेस प्राप्त करता है तो कॉन्शियस एक्सीलेंस, वो सस्टेन ग्रोथ को प्राप्त करता है और लास्ट में वो कॉन्शियस एक्सीलेंस को अचीव करता है। तो ये सिंपल फनल है। आपको अपने आप को कॉन्शियस बनाना है, उससे आप परफेक्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उससे आपको इंक्लूसिव सक्सेस मिल सकती है, सस्टेन ग्रोथ प्राप्त होगा और कॉन्शियस एक्सीलेंस आपको लाइफ में अचीव। आप छोटा काम करिए, ये जरूरी नहीं है कि सबको साइंटिस्ट बनना है। पैराचूट क्या कहा गया आपको, क्या कहा गया आपको, क्या बताया गया आपको? गॉड को ढूंढना है। दूसरा क्या बताया गया? अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में। तीसरा क्या बताया गया? आपको दूसरे जैसे बनना है। आपको शाहरुख खान, अगर आप एक्टिंग में जा रहे हैं तो शाहरुख खान बनना है। अगर आप कंप्यूटर में बिजनेस में जा रहे हैं तो बिल गेट्स बनना है। पॉलिटिक्स में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जैसे बनना है। और अगर आप नॉन वायलेंस में जा रहे हैं तो महात्मा गांधी बनना है। जरा सोचिए कि आप बन सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। मैं 1000 साल आपको दूंगा, आप मुझे 100% अमिताभ बच्चन बन के दिखाओ, मैं दूंगा आपको 1000 ईयर्स जीने के। अब इस कॉलेज में जो टॉपर था, आपको उसके जैसे बनना है, आप बन ही नहीं सकते। उसका माइंडसेट डिफरेंट, उसका टैलेंट डिफरेंट, उसकी कॉम्पिटेंसीज डिफरेंट, उसकी शक्ल डिफरेंट, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट। आप कहां उसके पीछे लगे हैं? आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप उन जैसे बन ही नहीं सकते। तो ये कंपैरिजन का गेम है जो पेरेंट्स करवाते हैं, बाकी करवाते हैं, ये सबसे बड़ी चौथी विडंबना है, चौथी गलती हमारे से। आप दूसरे जैसे बन ही नहीं सकते, आप बन सकते हैं। आप बेटर वर्जन आप बन सकते हैं। जो आज आपका लेवल है उससे आप अपने आप को उठा के बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। बेटर वर्जन जो आप हैं उससे अच्छा है। बेटर एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, बेटर स्टूडेंट बन सकते हैं, लेकिन खुद दूसरा जैसा आप नहीं बन सकते। ट्विंस भी एक दूसरे जैसे बन ही नहीं सकते। दोनों का माइंडसेट डिफरेंट होता है, दोनों की शक्लें डिफरेंट होती है, दोनों का कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। तो ये चौथा आपको झूठ कहा गया है कि आपको दूसरा व्यक्ति जैसे बनना है। और लगे हुए लोग 50 साल से लगे हुए कि मुझे इस जैसे बनना है। अब मुझे एक्टिंग करनी है तो अमिताभ बच्चन हो ही नहीं सकता है। अमिताभ बच्चन एक ही पैदा हुआ इस वर्ल्ड में। आप एक्टिंग सीख सकते हैं और अपने एक्टिंग के आधार पे आप बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप उन जैसे नहीं बन सकते। यहाँ पर मैंने एक थ्योरी डिजाइन की है जिसको थॉट एंड हुक थ्योरी कहते हैं। ये जो 75,000 थॉट्स है, मैं आपको अब सोल्यूशन दूंगा एंड में। आपने समझ लिया कि 75,000 थॉट्स है। अब आप इन 75,000 थॉट्स को आपको पहचानना है। आपकी पूजा यही है, आपकी तपस्या यही है, साइंस यही है कि आप आंखें बंद करके अपने थॉट्स को पहचानो, बस और कुछ नहीं करना। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ आप में चेंज आएगा जब आप कहीं भी बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, कमरे में बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और ये देखेंगे कि आप सोच क्या रहे हैं। बस इतना ही काम करना और कोई काम नहीं करना। आपको अपनी सोच देखनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। इसको हम थॉट एंड हुक थ्योरी। जितने भी हमारे 75,000 थॉट्स हैं, ये हमारे हुक रहते हैं हमारे माइंड के साथ। हमारे कितने इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे डेटा हमारे अंदर चला जाता है।
कितने इनपुट डिवाइसेस हैं? जैसे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स के कितने इनपुट डिवाइसेस हैं? हाउ मेनी इनपुट डिवाइसेस आर देयर? 5. कौन कौन से? और आईज, ears, nose, mouth and skin. ये सेंसेस है जिनसे डेटा फ्लो करता है हमारी बॉडी में। आईज से हम विजुअल्स देखते हैं, कानों से हम साउंड सुनते हैं, नाक से हम वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स उससे उसको समझते हैं, और स्किन से एहसास करते हैं, और माउथ से टेस्ट करते हैं। अब आपकी एज अगर 25 साल है तो 25 साल में लाखों इनपुट डेटा, आपके डिवाइसेस की इनपुट डेटा आपके माइंड में चला गया है। आपको बचपन में ये कहा गया कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो भूत आएगा। कहा था मम्मी ने कि नहीं कहा था? या पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा? कहा था? और क्या क्या कहा गया था आपको बचपन में? और आप अगर ये काम करोगे तो आपको चॉकलेट देंगे। तो करप्शन और ब्राइबरी वही से सीखी आपने। करप्शन वही से मदर फादर ने आपको करवाया था, क्योंकि आप काम नहीं करते थे, उन्होंने कहा चॉकलेट देंगे, आप काम करो। अब आप कुर्सी पर बैठे, आप कहेंगे यार 100 रुपए दे दो तभी ये फायदा नहीं। करप्शन का वो बेस वही से लाखों इनपुट डेटा जो है वो आपके अंदर में चला गया है, माइंड में चला गया है। ये कुछ सबकॉन्शियस में पड़ा है, कुछ कॉन्शियस में पड़ा है। आप महान व्यक्ति बन जाओ, अभी आप धर्म करो, भगवत गीता पढ़ो, सब कर लो, लेकिन वो जो नेगेटिविटी है वो वही है, वो कहीं नहीं गई है। जो आपने आंखों से देखा है आज तक, कानों से सुना है, स्किन से जो आपने एहसास किया है, माउथ से जो आपने टेस्ट किया है, वो सब आपके माइंड में है। सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर है, वो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव में स्टोर है। जब तक आप उस क्लटर को साफ नहीं करेंगे तब तक आप बेटर ह्यूमन बीइंग बन नहीं सकते। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप मेड सर्वेंट लो, उसको पैसा दो, उसको ये बताओ मेरे माइंड में झाड़ू लगा के इसको साफ कर दो। तो मेड सर्वेंट हो गए पंडित लोग या संत महात्मा, या जिस पर आप दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जो झाड़ू वाड़ू वो करते हैं, या किसी काउंसलर के पास जाओगे कि यार आप मेरे माइंड को ठीक कर दो। एक तो ये रास्ता है, और आपको पता है कि इस कमरे को अगर साफ करना, हमें इसको रिफर्बिश करना है, नया बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले पुराने सामान को सबको क्लियर करना पड़ेगा। ये तभी होगा जब आप खुद झाड़ू उठाएंगे। क्योंकि मेड सर्वेंट्स का सबका एक्सपीरियंस यही होता है कि वो कुछ न कुछ कॉर्नर में छोड़ देते हैं, वो खुद लगना पड़ता है फिर वापस। तो आपको खुद झाड़ू उठाना पड़ेगा। ये जो माइंड सबकॉन्शियस में आपकी नेगेटिविटी है उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप बेटर ह्यूमन बन सकते हैं, बेटर वर्जन बन सकते हैं। उसके लिए हमने SIT MIT एक प्रोसेस बनाई है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक, माइंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक, माइंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि आपको अभी बैठना है, मैं आपको वो 5 मिनट आज करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं वो आपको प्रोसेस करा रहा हूँ। अभी तक तो थियोरेटिकल था सारा, अब मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ दे के जाऊँगा। मेरे पास ये चीज़ है, आप इसको कर लो, आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगी और 100% होगी। आप बेटर वर्जन बनते जाएंगे, लेकिन आपको करना है, कुछ नहीं करना। आपको कहीं पर कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करनी है, ना कोई पूजा करनी है, ना कोई अगरबत्ती जलानी है, कुछ नहीं करना है। आपको खुद को ही आपको सर्विस करना है, अपने माइंड को सर्विस करना है। कार की सर्विस होती है वर्कशॉप में, आपको खुद की एज बॉडी की सर्विस करनी है। तो मैं करवा रहा हूँ आपको। इसमें क्या है कि आप एक एक पेन और पेपर आप अलग से फाड़ दीजिए अपने नोटबुक से। मैं वही कह रहा हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथायत में, सब में यही लिखा है
मैं वही कह रहा हूँ आपको, गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही लिखा है, कहाँ पर कौन से शब्द ये आपको रेफर कर रहे हैं। मैं भगवत गीता में वही चीज़ कह रहा हूँ जो वैदिक साइंसेज है उसी से बता रहा हूँ। हमने उसको गलत तरीके से समझ लिया, हमने पूजा समझ लिया, वो पूजा थी नहीं, वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ इफेक्टिव, बस इतनी गलती। देखिए अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये प्रैक्टिस हम करेंगे 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। आपको आइज क्लोज करनी है। पहले आप समझ लीजिए, सभी लोग फ्री हो गए? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट दिन है आज, क्योंकि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आज, आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, आप अपने लिए सारा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आइज को क्लोज करना है। आइज क्लोज करने के बाद में आप अपना जो ध्यान है वो अपने इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में की तरफ ले जाइए कि आप सांस लेते कैसे। कभी देखा आपने आप सांस लेते कैसे और छोड़ते कैसे? कभी देखा? और बाकी तो सब देखा, टीवी भी देखा, मोबाइल भी देखा, और दुनिया भी देख लिया। सब लोग कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, शक्लें कैसी हैं, खुद को नहीं पता ही नहीं आपको कैसे सांस लेते। जो हमारा जीवन है उसको कभी देखा ही नहीं, जो व्रत है। तो अपने इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, जो सांस हम लेते कैसे छोड़ते कैसे, उसके बाद आप अपने थॉट्स की तरफ ध्यान देंगे कि आप सोच क्या रहे हैं अभी इस टाइम में, आप सोच क्या रहे हैं। जो आपकी सोच आ रही है उसको इस पेपर में आप ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दीजिए, उसके मतलब 2 कॉलम बना दीजिए। इस साइड में लिखिए, लेफ्ट साइड में यूजफुल थॉट्स। क्या लिखेंगे? यूजफुल थॉट्स। और लेफ्ट साइड में लिखेंगे वेस्ट। क्या लिखेंगे? वेस्ट थॉट्स। ये प्रयास है, और ये जब तक आप इस धरती पर है आपको रोज करना है। सवेरे 5 मिनट, 10 मिनट, और सोने से पहले 10 मिनट, और कुछ नहीं करना है। आप इसको 1 साल कर लीजिए, फिर देखिए आपकी पूजा ज्यादा स्ट्रांग है कि हमारा प्रोसेस ज्यादा स्ट्रांग, साइंटिफिक प्रोसेस ज्यादा स्ट्रांग है कि आपकी पूजा ज्यादा। आपकी उससे डेस्टिनी बदल रही है कि इससे डेस्टिनी बदल रही है। आपको उससे ग्रोथ मिल रहा है कि इससे ग्रोथ मिल रहा है। आपकी डिसीजन मेकिंग उससे इंप्रूव हो रही है कि इससे हो रही है। आप उससे एक्सीलेंस को अचीव कर रहे हैं कि इससे कर रहे हैं। आप सक्सेसफुल उससे हो रहे हैं कि इससे हो रहे हैं। बच्चों को भी सिखाएं। सबसे पहले आंखें क्लोज करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की तरफ ध्यान रखना है कुछ समय, और फिर आप सोच क्या रहे हैं, थॉट्स, उनको समझना है। जब आप कंप्लीट करेंगे फिर आप इस पेपर पर लिखेंगे कि आपके यूजफुल थॉट्स कौन से आए हैं, जो आपके मतलब के थॉट्स हैं। यूजफुल मतलब है जो आपके मतलब के थॉट्स हैं। और वेस्ट, जैसे आप मेरे को मर्डर करना चाहते हैं, वेस्ट है तो आप लिख लेना उसमें, आई वांट टू मर्डर आर्सिन। मैं पेपर किसी का नहीं पढ़ूंगा, कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास नहीं। 24 घंटे में इसको 4-5 बार पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। जो वेस्ट वाले थॉट्स है वो कैंची से काट के उसको चलाना है। आप आजाद हो गए उतने थॉट्स से। ये थॉट्स अब आपको नहीं आएंगे, ये गए, ये साइकोलॉजी है। ये थॉट्स गए, खत्म। लेकिन है वहां पर लाखों। आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। बापू आशाराम के बहुत बड़े संत थे, मैंने उनको कवर किया है। 50,000 लोग एक साथ में बैठते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करती थी, सबसे ज्यादा गैदरिंग वो खींचते थे। वो पूजा करते गए, रिलीजन के पीछे लगे, और उनको ये पता ही नहीं चला यार उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा थॉट छुपा है जो उनको परेशान कर सकता है। तो 75 साल की एज में एक छोटी सी लड़की के साथ में छेड़खानी कर दी, पॉक्सो एक्ट पे फंसे जेल में पड़े। उनकी गलती नहीं है, उनकी सिर्फ एक ही गलती है कि वो पूजा के पीछे लगे और अपने अंदर में देखा ही कि यार मेरी। आप हैरान हो जाओगे, आप यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो यार आप कभी कभी ऐसा भी आपकी सोच है, आपको खुद समझ आएगा। आप तो एजुकेशनिस्ट थे, आप तो टीचर थे, आप तो एक अच्छी हाउसवाइफ थी, आप तो एक महान व्यक्ति थे, और आपकी इतनी छोटी सोच है। यू विल बी सरप्राइज्ड जब आप सबकॉन्शियस माइंड से अपने थॉट्स को निकालना शुरू करेंगे, तो आपको समझ आएगा यार ये मेरी ऐसी भी सोच, घटिया सोच हो सकती है। वो घटिया सोच ही हुक है जो आपको पीछे खींच रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने, और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप यू आर नॉट, आप कॉन्शियस ही नहीं है।
तो अपने थॉट्स के प्रति कॉन्शियस होना है, देखना है कि मैं सोच क्या रहा हूँ, और कोई कुछ नहीं करना है। सभी शास्त्रों ने यही कहा है कि सोचो क्या देख रहे हो यार, सोच क्या रहे हो बोलिए। तो करिए आप। सबसे पहले प्लीज क्लोज योर आइज, ब्रिंग अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। बढ़िया स्माइल, जो जितना स्माइल ला सकता है, सुंदर सा स्माइल उतना फेस पे लीजिए। नाउ टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। आप सांसें कैसे लेते हैं, जबरदस्ती नहीं करना है, जैसे ले रहे हैं उनको देखो कि मैं ऐसे सांस ले रहा हूँ, ऐसे छोड़ रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे छोड़ रहा हूँ। अब आप थॉट्स अपने देखिए कि आप सोच क्या रहे हैं। नाउ स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर थॉट्स। आंखें तब तक ही खोलनी जब तक हम नहीं बनाएंगे। Big smile on your face once again. अब आप लिखिए, खुद अपना लिखिए, आपको कोई देगा, मुझे नहीं चाहिए। ये आपके थॉट्स है, आपको अपने थॉट्स खुद लिखने पड़ेंगे। यूजफुल थॉट्स आपने क्या, आपके मन में यूजफुल थॉट्स क्या है जो आपको यूजफुल लगते हैं। देखो थॉट्स अच्छे बुरे नहीं होते, आपको कौन से मतलब का है वो यूजफुल होगा, आपके मतलब का जो नहीं है वो वेस्ट होगा। वो सब लिखो, आपको जो अच्छा लगता है वो सब लिखो। जो आपके बेस्ट थॉट्स है वो भी लिखो, एक साइड में वो लिखो, एक साइड में दो जगह बस। अभी आप इसको 24 आवर्स में, जो नेक्स्ट 24 आवर्स कल शाम तक, इसको 4-5 बार पढ़ लेना। अपने पर्स में, अपने पॉकेट में रख के इसको पढ़ लो, ठीक है। यूजफुल थॉट्स कौन से हैं, और इसके बाद क्या है कि जो यूजफुल थॉट्स है उनको नरिश करना है, उनको नरिश करना है, उनको और नरिशमेंट करनी है ताकि वो और इम्प्रूव हो जाए, आगे बढ़े। और वेस्ट थॉट्स को इवैक्यूएट करना है, हटाना। इवैक्यूएशन कैसे होगा, उसके लिए आप ये वाला हिस्सा आप काट के इसको जला देना माचिस। सिर्फ
उस हाफ पेज को यूजफुल तो अभी तो मैंने इस पे कराया। आप अगर इस पे अगर आप अपने थॉट जो 75,000 थॉट्स को रोज पहचानना चाहते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं, आप जो है आपको हम जो है हम वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स, तो हम सोच क्या रहे तो आप 2 नोटबुक्स बना सकते हैं, एक में वेस्ट थॉट्स लिख सकते हैं, एक में यूजफुल थॉट्स लिख सकते हैं। करते जाइए इस प्रैक्टिस को, जब तक आप जिंदा है यही करिए, इससे आपको ग्रोथ, इसमें आपको पता चल जाएगा। आपको तो देखो साइंटिफिक प्रोसेस है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार मैं आज दिन में मैंने क्या सोचा, मेरे उसमें मतलब के कौन से हैं और मेरे वेस्ट कौन से थॉट्स हैं। कल फिर वैसे करोगे, परसों फिर वैसे करोगे, करते रहेंगे तो 10 साल में तो चेंज आएगा ही आएगा 100%। आपको समझ आएगा कि ये वेस्ट थॉट्स में अननेसेसरी अपने पीछे एक बोझ लेके चल रही हूँ या चल रहा हूँ, मुझे इसको नहीं कैरी करना है। वो जैसे वाटर बबल नीचे से आकर ऊपर एब्जॉर्ब होता है, पूरा डिजॉल्व होता है, वैसे ही ये थॉट्स जो सबकॉन्शियस से निकल के स्ट्रेस ये बाहर आता है और खत्म होता है। आइंस्टाइन 4% अपने ब्रेन का जो है उसको यूज करते थे, तो इतनी बड़ी डिस्कवरी की इक्वोटेंसिस का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम आम आदमी जो है वो 2% अपने ब्रेन का यूज करता है, सिर्फ 2%। क्यों? क्योंकि 98% में वो अनलिमिटेड स्ट्रेसफुल थॉट्स है, एनर्जीज है जो वहाँ पर स्टोर है। जब तक आप उनको खाली नहीं करेंगे तब तक वो वही रहेंगे और आपको परेशान करते जाएंगे। आप बहुत बढ़िया रहेंगे, क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अचानक से गुस्सा आ जाएगा, आप गालियाँ देना शुरू कर देंगे दूसरे के ऊपर, तो आया कहाँ से वो? इसका मतलब वही था, वो तो थी वही, गालियाँ वालियाँ सब तो वही थी आपके सबकॉन्शियस में। आप बहुत बढ़िया इंसान, आप कह रहे हैं साहब मैं तो रोज भगवान शिव के वाणी भी चलाता हूँ, बहुत मैंने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं, और एकदम में कोई ऐसा थॉट आ जाएगा जो डिस्टर्बिंग होगा, जो आप पेड़ काटना शुरू कर देंगे, जानवरों को मारना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है वो सारे थॉट्स जो आप सोच रहे हैं, आप परेशान मत हो जाइए, ये डेस्टिनी नहीं है, ये कोई डेस्टिनी साइंस नहीं है। आप ईश्वर की तरफ देखते हैं, वो आपको मदद करेंगे। वो आपकी तरफ देखते हैं कि यार मैंने तेरे को भेज दिया है, तू अपनी मदद करके इस संसार को आगे ले जाओ। ये विडम्बना है। आप उनकी तरफ देख रहे हैं कि साहब कुछ तो मुझे मेरे बच्चे पास करा दो, मुझे पास करा दो। वो कह रहा है मैं तो यार तेरे को दिमाग दिया है, प्रोसेस भी बताया है अपने थॉट्स को पहचानने का, जाके तू बेटर इंसान बन के काम करके दिखा दे, मृत्यु हो जाएगी, लेगेसी पीछे छोड़ कि मैंने अच्छा काम कर दिया है। पेंटर बनेंगे तो बढ़िया पेंटर बनिए, टीचर बनेंगे तो अच्छा टीचर बनिए। हर काम बहुत अच्छा है संसार में, आप उस काम को एक्सीलेंस के साथ में करते हैं, दूसरा जैसा नहीं बनना है, यदि अपने जैसा बनना है। आप दोनों वेबसाइट्स लिख लो, उसके थ्रू में हमारी टीम के कांटेक्ट में आप आ सकते हैं। spandashala.org और rcrana.com दोनों वेबसाइट्स हमारी है। आप उसमें खुद ही आपको उसमें बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी प्रोसेस मिलते जाएंगे, आप करते जाइए और बच्चों को an initiative by SOOG. This is a thought process. S means sense, O means of, O means one, G means God. So it's a SOOG, private limited company, which we had floated in November 11/21 with the mission to make a transformation. First I, then you. So I'm working on these 6 parameters, 6 verticals. Number 1 is education. Education is connected with your health and wellness. This is number 2 vertical. Number 3 comes sports. Sports is related to media. Then comes agriculture. Last not but the least, the spirituality. So this is the first initiative we had requested Dr. Asirana. We are childhood friends.
he is here from last 84, 86. A friend is a friend. He is without any desires. Dr. Arsirana, who is my true friend, on behalf of Sons of One God and Ranjit College of Education, I extend my heartiest thanks to my dear friend, and I say him, I love you. Again, why I love him? He has life on values and he is a energetic friend. Don't do anything. Don't see his body. I had seen him from Srinagar to Mumbai, Chhattisgarh. He is a versatile character. You know, he was not feeling well today, and I said him that don't do it. That I have to go there. I have to go there. Just 2 lines I will say. बच्चे लोगों, सुबह उठ के एक ब्रश लो अपने हाथ में, आप शूज पॉलिश करते हो, अपना ड्रेस पॉलिश करते हो, टूथ साफ करते हो, 4 भी याद रखो बच्चे, ब्रश, ब्रेन, बिगन ब्यूटीफुली डेली। ब्रश ब्रेन के क्या प्रोसीजर है, सर ने जो आपको बुलाया है कि स्पंदनशाला, इट्स ए थॉट प्रोसेस। जिंदगी में एक ही चीज है जो गुलशन साहब ने भी कही है, सिर्फ एक क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखिए, इस हाथ से बाहर जाइए। मैं वो लाइन जरूर पढ़ूंगा। सिखिज्म ये सिख नहीं है, क्या है? वो कृपान डाल लेना, गुरुद्वारे जाना, दैट्स नॉट ए सिखिज्म। लॉट ऑफ राइटर्स हैव रोट कि जो नेक्स्ट गवर्नेंस होगी पूरे वर्ल्ड में, दैट विल बी इंस्पायर्ड बाय सिख एंड सिखिज्म। जो नेक्स्ट गवर्नेंस होगा, that will be inspired by Sikh and Sikhism. Sikh means students. Sikh means Sikh means students. So I will conclude with this. Guru Nanak wrote a Guru Granth Sahib. Usme there are only 6 Sikh teachers and rest are from other communities. जो सर का मैसेज है, that I want to conclude. Guru Nanak मूल मंत्र ही wrote in Guru Granth Sahib, एक ओंकार, we all are one. सतनाम, his name is truth. हम सब झूठे, हमें चले जाना है। That one. कर्ता पुरुष, ये राणा सर ने जो किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, उसी ने किया। He has given the power to speak. निरपोय नहीं, वो डरता नहीं है। अकाल मूर्त, वो मेरी शेप में नहीं आता। आजूनी सहबंग, वो सेल्फ क्रिएटेड है। गुरु प्रसाद, मैं उस क्वेश्चन पे आना चाहूँगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कहते आज सच, जुगाद सच, हैप्पी सच, नानक होसी पी सच। अब जो ये बात कर रहे थे, सोचा सोचना हो, हमारे थॉट से ऊपर। फिर पुख्या पुखना उत्तरी, जबन्ना पुरिया पार, सहन से आपा लख हुए ता एक न चलने। अब ये जो गुरु ग्रंथ साहब में क्वेश्चन है, वो सबके लिए है, जो राणा साहब भी आपको कहना चाहते थे। किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टूटे पार। ये क्वेश्चंस अगर पूरा वर्ड दिमाग में डाल ले कि हाउ टू बी ट्रूथफुल, हाउ टू बी ट्रूथफुल, इसके पीछे सारी थ्योरी ऑफ व्यू हो जाती है जो राणा साहब ने बात की है। आई एम हैप्पी अगर आपको लगता है कि उस ऊपर वाले ने इनको कोई अक्ल दी है, अगर ये कुछ बोल रहे हैं, यहाँ से बात नहीं ना करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वेबिनार हो स्पंदनशाला में, हम आपको
इंटीमेट करेंगे, आप हमें ज्वाइन करिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू।